A very beautiful good morning to all of you ninth class. Hi, this is your Archana Miss here. How are you all? So welcome to your bio class. So as you all know that we have done three lectures of this chapter. So today is our fourth lecture. So let's start with the chapter without wasting our time. So students, all of you know very well that in our previous lecture we have discussed about complex tissue. So there are basically two types of complex tissue, that is xylem and phloem. Okay, so as you all know that xylem is a conductive tissue in plants which is responsible for conduction of water and inorganic substances. xylem जो है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करता है, ठीक है, रूट से ऊपर की तरफ. ओके, so we have also discussed that xylem consists of four types of cells. That is, xylem is made up of four types of cells. These cells are tracheids, vessels, xylem parenchyma and xylem sclerenchyma. So let's discuss these four types of cells one by one in detail. So first type of cell is tracheids. It is elongated, angular, dead cells involved in conduction of water. So children, tracheid is a type of cell of xylem which is elongated, जो कि elongated है, angular dead cell है, वो एक dead cell है, involved in conduction of water, जो कि transportation of water में help करता है. ठीक है. So अगर मैं अभी आपको इस डायग्राम के थ्रू बताऊं कि जो xylem है वो xylem का जो सेल है ट्रैकिड्स वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है, तो मैं आपको बताती हूँ. जो ये वाला पोर्शन है, ओके, दिस पोर्शन इज ट्रैकिड्स. ओके, ये इलोंगेटेड है और आप देख सकते हो एंगुलर है, जो कि वाटर कंडक्ट करता है, ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है. सो अनदर टाइप ऑफ सेल इज वेसल्स. ठीक है, these are cylindrical tube like structure placed one above the other and which form channel for conduction of water. जो वेसल्स हैं वो सिलेंड्रिकल ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं. अब यहाँ पे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ट्यूब लाइक्स बने हैं, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने हैं. ये एक ट्यूब है, ये दूसरी ट्यूब है, यहाँ पे भी ट्यूब है, ये भी ट्यूब है. डायग्राम में आप देख सकते हैं ये वन अबव द अनदर, एक के ऊपर एक ट्यूब आप देख सकते हो. दिस इज वन, दिस इज सेकेंड. सो ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो एक दूसरे के साथ अटैच हैं, वन अबव द अदर प्लेस हैं, जो कि चैनल्स बनाते हैं फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर. ये भी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर में हेल्प करते हैं. दैट इज वर्टिकली अपवर्ड्स, ऊपर की तरफ, रूट से प्लांट के पार्ट्स की तरफ, ये अपवर्ड, नीचे से ऊपर की तरफ. जाइलम जो है अप, यहाँ से नीचे से ऊपर की तरफ जाता है वर्टिकली. ओके, थर्ड टाइप ऑफ सेल इज जाइलम पैरेन्काइमा. थिक सेल्स यूज फॉर स्टोरेज ऑफ फूड स्टार्च. सो चिल्ड्रन, पैरेन्काइमा की स्पेलिंग है PARENCHYMA. करेक्टेड. थिक सेल्स, xylem parenchyma are thick cells used for storage of food. ये फूड स्टोरेज में हेल्प करते हैं. दैट इज फूड इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च की फॉर्म में ये फूड को स्टोर करते हैं xylem parenchyma सेल्स. तो आप देख सकते हैं जो पर्पल कलर के डायग्राम में ये साइड पे आपको सेल्स दिख रहे हैं, दीज सेल्स आर xylem parenchyma. Next is xylem sclerenchyma. Non-living fibers with thick walls. These cells are non-living fibers. Non-living fibers होती हैं धागे like structures हो गया, with thick walls, इनकी walls thick हैं, and narrow cavities. Narrow cavities present होती हैं जो provide करती हैं mechanical support. Cells को ये support provide करती हैं. So remember this students, xylem parenchyma helps in storage of food and helps in sideways conduction of water. xylem parenchyma sideway conduction of water में help करता है और storage करता है food. ठीक है, सेल के अंदर. and xylem sclerenchyma are mainly supportive in function. ये सेल को जो है सपोर्ट प्रोवाइड करता है. ये यहाँ पे आपको इस डायग्राम में नहीं दिखेगा, लेकिन ये जो xylem parenchyma है और ये ट्रैकेट्स है, इसके बीच में एक लेयर होती है प्रेजेंट, उन्हीं को हम बोलते हैं xylem sclerenchyma, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है. ठीक है, मेनली सपोर्टिव इन फंक्शन.
one more thing which I would like to add, that is function of xylem parenchyma. It helps in short distance conduction and storage of water. जो xylem parenchyma है वो हेल्प करता है शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, ठीक है. बट ट्रैकिड्स एंड वेसल्स हेल्प इन लॉन्ग डिस्टेंस कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये चीज़ आपने याद रखनी है. जो ट्रैकिड्स और वेसल्स हैं वो किस में हेल्प करते हैं? अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर या मिनरल्स जो है ट्रांसपोर्ट करना है सेल के अंदर, तो वो ट्रैकिड्स और वेसल्स उसमें हेल्प करते हैं. लेकिन जो xylem parenchyma है वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स में हेल्प करता है. सो दिस इज ऑल अबाउट 4 टाइप्स ऑफ सेल्स ऑफ xylem. So next type of complex permanent tissue is phloem. Okay, so let's read the meaning of phloem with its definition. Phloem is the vascular tissue in plants which conducts sugars and other metabolic products upward and downwards from the leaves. फ्लोएम एक ऐसा वेस्कुलर टिश्यू है जिसको हम फूड कंडक्टिंग टिश्यू भी बोल सकते हैं प्लांट्स में, विच कंडक्ट शुगर्स एंड अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स. जो किसकी कंडक्शन में हेल्प करता है? ट्रांसपोर्टेशन की. शुगर्स या फूड पार्टिकल्स हो गए या अदर मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स, उसकी कंडक्शन में, ट्रांसपोर्टेशन में जो है प्लांट्स के अंदर, उसमें हेल्प करता है. दैट इज मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स अपवर्ड्स एंड डाउनवर्ड्स फ्रॉम द लीफ. सो ये अपवर्ड भी जा सकता है, ठीक है, अपवर्ड की डायरेक्शन भी हो सकती है या डाउनवर्ड भी हो सकती है इसकी डायरेक्शन, ठीक है. जो जाइलम था वो वर्टिकली अपवर्ड जाता था, कंडक्शन में हेल्प करता था. लेकिन जो फ्लोएम है वो किस में हेल्प करता है? अपवर्ड भी और डाउनवर्ड कंडक्शन में वो हेल्प करता है. जैसे जाइलम 4 टाइप्स ऑफ सेल्स का बना था, ऐसे ही फ्लोएम कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, दैट इज सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स, phloem fibers and phloem parenchyma. So let's discuss these 4 types of cells in the next page one by one. First one is sieve tubes. Sieve tubes कहाँ पे प्रेजेंट होती हैं फ्लोएम के अंदर और किस में हेल्प करती हैं, ये हम पढ़ते हैं. ट्रांसपोर्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. सीव ट्यूब्स जो हैं वो ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मींस शुगर मेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस के टाइम पे जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनते हैं सीव ट्यूब उसकी ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती हैं, ठीक है. So children, I will show you in the diagram the structure of sieve tubes. तो ये जो आप पर्पल कलर के स्ट्रक्चर्स देख रहे हो, ट्यूबुलर टाइप सेल्स जो हैं, ये सीव ट्यूब सेल्स हैं जिसमें वॉल्स हैं, परफोरेटेड वॉल्स हैं. ये सारे पर्पल कलर के जो स्ट्रक्चर्स हैं ये सीव ट्यूब्स हैं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट कंपेनियन सेल्स. रेगुलेट द एक्टिविटी ऑफ शुगर इन सीव ट्यूब्स. सो कंपेनियन सेल्स जो हैं, ये साइड पे जो आप ऑरेंज कलर के देख रहे हो, ये कंपेनियन सेल्स हैं. ये रेगुलेट करते हैं शुगर की एक्टिविटी को सीव ट्यूब्स के अंदर. सीव ट्यूब्स के अंदर जो शुगर प्रेजेंट होती है उसकी एक्टिविटी को ये रेगुलेट करते हैं कि कहाँ पे कितनी रिक्वायरमेंट है फूड की, ठीक है. कंपेनियन सेल्स के अंदर एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियर भी होता है, जैसे कि आप डार्क ऑरेंज कलर का देख सकते हो, यहाँ पे ये प्रेजेंट है. Now third type of phloem cell is phloem fibers. It provides mechanical support to sieve tubes. Phloem fibers जो हैं वो sieve tubes जो हैं, ये जो green कलर का that is phloem fiber, ये sieve tubes को mechanical support provide करता है. इस डायग्राम के अंदर जो आपको green कलर का यहाँ पे स्पेस दिख रहा है sieve tubes के अंदर, ये phloem fibers है जो कि mechanical support provide करता है sieve tubes को. सो फ्लोएम फाइबर्स जो हैं वो डेड सेल्स हैं, ठीक है, वो डेड सेल्स होते हैं जो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं सीव ट्यूब्स को. 4 टाइप ऑफ सेल इज फ्लोएम पैरेन्काइमा. सो फ्लोएम पैरेन्काइमा आर सिंपल सेल्स एंड हेल्प इन स्लो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. ये एक तो फूड को स्टोर करता है और स्लो कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल्स. जो ट्रांसपोर्टेशन है स्लो प्रोसेस होता है, इसका ट्रांसपोर्टेशन स्लो होती है और ये फूड मटेरियल्स को स्लो
ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है, ठीक है। जितना भी फूड पार्टिकल्स है उसको ये स्टोर करके रखता है। So students, now we will revise tissue, ठीक है, that is plant tissue in detail with the help of a flow chart। ये flow chart है, इसकी हेल्प से हम एक बार रिवाइज करते हैं, रिकॉल करते हैं कि हमने क्या क्या प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ा है, ठीक है। और ये जो फ्लो चार्ट है ये आपने अपनी नोटबुक में भी बनाना है, जिससे कि आपको इजीली जो पता चल जाएगा कौन से टाइप के जो टिश्यूज हैं उनके वो फर्दर सब डिवाइडेड कैसे हैं। So first one is plant tissue. We have discussed tissues of two types, that is plant tissue and animal tissue, ठीक है। टिश्यू टू टाइप्स का है, हमने डिस्कस किया। सो हमने प्लांट टिश्यू के बारे में डिटेल में डिस्कस किया है। सो प्लांट टिश्यू भी फर्दर टू टाइप्स का, दैट इज मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एंड सेकेंड टाइप इज परमानेंट टिश्यू। Meristematic tissue is further subdivided into three types, that is apical meristem, intercalary meristem and lateral meristem. And permanent tissue is further subdivided into two types, that is simple permanent tissue and complex permanent tissue. Further, simple permanent tissue is divided into two types, that is protective and supportive। तो सिंपल परमानेंट टिश्यू फर्दर सब डिवाइडेड हुआ है टू टाइप्स में, दैट इज प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिव। फर्दर दीज आर ऑल्सो सब डिवाइडेड। प्रोटेक्टिव टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज एपिडर्मिस एंड कॉक, एंड सपोर्टिव टिश्यू इज फर्दर सब डिवाइडेड इनटू थ्री टाइप्स, दैट इज पेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। फर्दर कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज जाइलम एंड फ्लोएम, और इसकी टाइप्स हमने अभी पिछले जो पेजेस में हैं वो डिस्कस किए। सो दिस इज ऑल अबाउट plant tissue। So now we will discuss about second type of tissue, that is animal tissue, in our next lecture video, okay।